Okay. Good morning, students. We are doing continue this chapter. We are continuing this chapter. Chapter number 8. How do organism reproduce? इसमें हमने करा था बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी थी. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा जा रहा था? सबसे पहले फिजन. ठीक है, फिजन. नेक्स्ट हमने करा था फर्मेंटेशंस. अब हम करेंगे रीजनरेशन. प्लेनिरा रीजनरेशन. अच्छा, बाइनरी फिशन. फिशन की बात जो हमने करी थी कल, मैंने बताया था आप सबको. फिशन किस में होता है बेटा? अमीबा में. वेरी गुड. और फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन किस में करा था? ठीक है, वेरी गुड, स्पाइरोगेरिया. अब आता है रीजनरेशन. रीजनरेशन होता है कि फर्मेंटेशन की तरह ही है. फर्मेंटेशन का कितने भी पार्ट्स में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन रीजनरेशन में वो क्या होता है, उसके प्लेनिरा होता है. एक जीव प्लेनिरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. प्लेनिरा के 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करने पर वो अलग से नए नए रूप उसके 3 प्लेनिरा बन जाते हैं. देखिए फिगर नंबर आपका 8.3 में है. फिगर 8.3. ओके. फिर आता है बर्डिंग. बर्डिंग में क्या है कि देखिए आपकी फिगर है 8.4. 8.4 में जो साइड में से बर्ड निकलने लगती है, ठीक है, वो अगर टूट के नीचे गिर जाती है तो वो नया उसमें से तैयार हो जाता है हाइड्रा. हाइड्रा बर्डिंग में होता है. तो बेटा रीडिंग कीजिए. बेटा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. करिए. 8.2.3 Regeneration. Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces. Many of these pieces grow into separate individuals. For example, simple animals like Hydra and Planera can be cut into any number of pieces, and each piece grow into a complete organisms. This is known as regeneration. Regeneration is carried out by specialized cells. These cells proliferate and make large number of cells. From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. These changes take place in an organized sequence referred to as development. However, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being up to be able to reproduce. ओके बेटा. तो इसमें क्या होता है, जितने पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा, हम उसको डिवाइड करेंगे तो उतने पार्ट में, इसमें मेन 3 पार्ट्स में इसको हेड अलग है, इसका बीच का पोर्शन अलग किया है, नीचे का अलग. जितने पार्ट्स में उसको कट करेंगे उतने ही प्लेनिरा में डिवाइड हो जाएंगे, वो रीजनरेट हो जाएंगे. 8.2.4 Budding. Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. In Hydra, a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site. These buds develop into tiny individuals and when fully mature, detach from the parent body and become new independent individuals. 8.2.5 Vegetative propagation. There are many plants in which part, like the root, stem and leaves, develop into new plants under appropriate conditions. Unlike in most animals, plant can indeed use such a mode of reproduction. This property of vegetative propagation is used in methods such as layering of grafting to grow many plants like sugarcane, roses or grapes for agricultural purposes. Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics.
ओके बेटा, ओके। बर्डिंग में क्या होता है, हाइड्रा में होता है, साथ में ये जो हाइड्रा होता है इसके साथ में बर्ड निकलने लगता है। जैसे प्लांट्स में देखा होगा आपने, बर्ड निकलते हैं ना साइडों में, हाइड्रा में भी सेम इसी तरीके से साइड में बर्ड निकलने लगती है। और एक टाइम के बाद अगर वो टूट के गिर जाती हैं तो नया ऑर्गेनिज्म यानी कि नया हाइड्रा उसमें से डेवलप हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ज़रा इसको भी ध्यान से देखिएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, प्लांट्स के लिए है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके लिए होते हैं, प्लांट्स के लिए। और इसके नाम से ही पता चल रहा है वेजिटेटिव किसके, वेजिटेबल्स, प्लांट्स में से ही आएंगे वेजिटेबल्स। तो इसमें से क्या होता है, कुछ पौधे लीव्स में से ही बनने शुरू हो जाते हैं, कुछ उसके क्या होते हैं, ये स्टेम होती है। स्टेम को अगर हम ऐसे, इसको काटा जाता है जब लगाने के लिए तो ऐसे काटा जाता है और उसको हम लगा देंगे। जैसे रोज प्लांट है, मनी प्लांट है, इन प्लांट्स को अगर हम काट के लगाते हैं तो नया प्लांट डेवलप हो जाता है, कुछ रूट से, कुछ स्टेम से, और रूट से ब्राइफिलियम, इसके ऊपर छोटे छोटे नए पत्ते निकलने शुरू, नया प्लांट्स निकलना शुरू हो जाता है कहीं पे भी, ठीक है। और वो टूट के गिर जाता है तो नए प्लांट में वो डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ रूट से, कुछ सीड से, तो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में से जब पौधा निकल के अलग से होता है तो उसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, फिर रीडिंग बेटा। Similarly, buds produced in the notches along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into new plants. 8.2.6 Spore formation. Even in many simple multicellular क्या organisms. होता है बेटा, देखिए जब Spore formation. Even in many simple multicellular organisms, specific reproductive parts can be identified. The thread-like structures that developed on the bread in activity 8.2 above are the hyphae of the bread mold rhizomes. They are not reproductive parts. On the other hand, the tiny blob on a stick. स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे कि आपका कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्पोर में होता है कि वो बिखर जाते हैं। क्या बिखरेंगे, जब बीज होते हैं ना, बीज, फ्रूट पक जाएगा, उसके अंदर जितने बीज होंगे वो बीज क्या हो जाते हैं, ये फट जाता है, फट के उसके कहीं कहीं पे वो बीज गिर जाते हैं तो उसमें से नया प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। ये कहलाता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। जैसे कि आपका कॉटन प्लांट्स का फ्लावर, जब वो फ्लावर में से क्या निकलना शुरू हो जाता है, कॉटन निकलनी शुरू हो जाती है तो वो फट के गिरना शुरू हो जाता है, कहीं कहीं पे गिर जाते हैं, वहाँ पे नया प्लांट अगर निकल जाता है तो उसको बोला जाता है स्पोर फॉर्मेशन। Which contain cells or spores that can eventually develop into new rhizomes. Individual, the spores are covered by thick walls that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow. All the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generations to be created from a single individual. This is known as asexual reproduction. 8.3 सेक्सुअल 8.3 बाद में करते, पहले आपको सबको क्लियर हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। जब एक ही जीव में से दूसरा जीव निकल के आता है तो उसको बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसमें मेल और फीमेल नहीं चाहिए, सिर्फ एक पार्ट ही चाहिए, कोई भी हो उसमें से, वही टूट कर, या फिर जैसे अभी मैंने प्लांट्स के बताए थे आपको, उसके लीफ से या फिर उसकी स्टेम से या फिर उसके किससे, रूट से नया प्लांट जब निकलना शुरू हो जाता है तो वो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता है। स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि आपका पक के जब कुछ फ्रूट तैयार हो जाता है वो फट जाता है और उसके अलग अलग पार्ट्स में गिर जाते हैं, वहाँ से नया पौधा निकलना शुरू हो जाता है, वो आपका कहलाता है स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद आपका आता है, क्या था सबसे पहले बताओ बेटा, बाइनरी फिशन। बर्डिंग में बाइनरी फिशन होता था। फिर रीजनरेशन, उसको काट के डिफरेंट पार्ट्स में आप उसको जितना काटोगे उतने ही ऑर्गेनिज्म उसमें से निकलते चले जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अभी बताया बेटा मैंने आपको। नेक्स्ट पे था आपका स्पोर फॉर्मेशन हो गया, इसको उधर करो,
फिर आपका बर्डिंग हो गया। बर्डिंग में क्या था कि आपकी बर्ड निकल जाती है और बर्ड अगर टूट के इसकी गिर जाती है तो उसमें नया प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। फिर रीजनरेशन में 3 पार्ट्स में, हेड को अलग वो नया हो जाएगा, उसके बीच का बॉडी पार्ट अलग में डिवाइड हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट अलग में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके रीजनरेशन। अब आता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो ये हो गया फिनिश। अब है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। पढ़ो बेटा। Sexual reproduction. We are also familiar with modes of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created. Bulls alone cannot produce new calves, nor can hens alone produce new chicks. In such cases, both sexes, males and females, are needed to produce new generation. What is the significance of the sexual mode of reproduction? Are there any limitations of the asexual mode of reproduction which we have been discussing above? 8.3.1 Why the sexual mode of reproduction? The creation of two new cells from... एक मिनट बेटा, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है आपका, मेल और फीमेल। मैंने बताया थे आपके क्या है, 22 क्रोमोसोम सेम होते हैं। एक क्रोमोसोम डिफर करता है जो मेल का है और फीमेल का है, XX और मेल का XY। ठीक है, एक क्रोमोसोम्स के बारे में। अब मैं आपको देखो मेल और है फीमेल, ये आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मेल फीमेल 2 पार्ट चाहिए, ठीक है, तभी जीव तैयार होता है। इसमें क्या होता है, मेल के जो है बनते हैं स्पर्म और फीमेल में एग। जो इंटरनल चेंज है, एक पीरियड हुआ है, 8th क्लास में पढ़ा था आपने, एक पीरियड के बाद एट द एज ऑफ 11th और 12th के बाद जब बॉडी में इंटरनल जो चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं तो मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी। मेल में क्या प्रोड्यूस होने लगता है, स्पर्म, और फीमेल में एग। और जब ये फ्यूज होते हैं, ठीक है, फ्यूज होने पर क्या बना देते हैं इसको, जब मेल और फीमेल फ्यूज होते हैं इनके स्पर्म और एग, तो ये हो जाता है न्यू। सबसे पहले जो जीव होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और सबसे पहले जो हमारा होता है एग होता है, ठीक है। एग के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, ऑस्प्रिंग। ऑस्प्रिंग कहलाता है, ठीक है। ये जीव अभी तक एग की तरह ही होता है, इसमें हाथ पैर मुंह नहीं निकलते बच्चे के, ऑस्प्रिंग होते हैं। फिर एग जो होता है एक बंद मुट्ठी की तरह इतना ही होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। फिर ये ऑस्प्रिंग भी इतना ही पाता है, थोड़ी सी इसकी बस इसका ये है, थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाता है, बस इतना ही है। उसके बाद ऑस्प्रिंग के बाद फीटस। फीटस इसमें क्या हो जाता है, फीटस हो जाता है ये एट कब आ जाता है, 4 to 5 मंथ्स में, 4 to 5 मंथ्स में आ जाता है ये, ठीक है। जब 4 to 5 मंथ्स यूट्रस में होता है बच्चा, माँ के गर्भ में, जिसको यूट्रस बोला जाता है इंग्लिश में, तो 4 to 5 मंथ का होता है तो वो फीटस कहलाता है। तो ये 4 to 5 मंथ्स का होता है फीटस, ठीक है। हिंदी में तो इसको गर्भनाल बोल देते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फीटस। फीटस में होता है जब ये, फीटस में एक लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड में भरा होता है और वो लिक्विड में मूवमेंट इसकी लगातार होती रहती है। इसके बाद आता है जब भी इसका ये साइज और बड़ा हो जाता है, जब ये बेबी कहलाता है, ठीक है। जब ये बेबी में कन्वर्ट होता है, तो ये हमारी स्टेजेस हैं पैदा होने से पहले। पहले एग होता है, ऑस्प्रिंग, फीटस, फिर बेबी में कन्वर्ट होता है। फीटस में आगे इसमें हाथ पैर निकलने शुरू हो जाते हैं,
4 to 5 मंथ में, ठीक है। जब कहते हैं ना बच्चे को अगर मारा जाता है, यही मंथ होता है 4 to 5 मंथ्स में। इसमें बच्चे की डेवलपमेंट दिख जाती है कि वो कौन सी डेवलपमेंट हुई है, लड़का है लड़की है, सारी बॉडी पार्ट। आजकल हमारी जो मशीन निकली हुई है अल्ट्रासाउंड मशीन्स, उसमें पूरा बॉडी पार्ट्स बच्चे का दिख जाता है, ठीक है। तो यहाँ फीटस का पता चल जाता है। उसके बाद वो जब डेवलपमेंट होना शुरू होता रहता है तो बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी पूरी एक स्टेज है, ओके। इसको बेशक लिख लो कॉपी में, सारे पार्ट्स इसके। उसके आगे चलो बेटा पढ़ो। While DNA coping mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. If the DNA coping mechanisms were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with cellular apertures and would die. So how can the process of making variants be speeded up? Each new variation is made in a DNA copy that already has variation accumulated from previous generation. Thus too, the variation accumulated from different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variations. Since all these variations are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effects. Combining variations from 2 or more individuals would thus create new combinations of variants. Each combination पेज नंबर आपके बुक में है, पेज नंबर 135 पे फिगर है आपकी 8.8। देखिए मार्क कीजिए इसको 8.8, और उससे पहले वाले पेज पे आई फिगर है आपकी 8.7। 134 पे 8.7 और नेक्स्ट पेज पे 135 पे 8.8। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, इसको मार्क करो। आपने इसको अच्छे से करना है प्रैक्टिस इसकी। ये सारे लॉन्गिट्यूडनल फ्लावर है, ये पार्ट है 8.7 लॉन्गिट्यूडनल होता है, बीच में से काट के इसे सारा बताया गया है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल पार्ट होता है, फ्लावर को बीच में से काट के बताया गया है इसके। और फिर उसके बाद जो 8.7 में फिगर है आपकी 8.8 में बेटा लेट्स सी फिगर 8.8, ये है लॉन्गिट्यूडनल फ्लावर, बीच में से फ्लावर को काटा गया है। रोज प्लांट होते हैं ना, रोज फ्लावर, ये रोज फ्लावर का पार्ट है जिसमें से एक ऐसे करके बाहर निकलता है। तो ये आपका उसका सारे उसके लीव्स हटा दिए फ्लावर के, ये बीच का पार्ट उसमें से जो निकलता है सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किसकी बोली है? प्लांट्स की। प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस भी करते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये वाला जो कि इसमें ऊपर क्या है? पोलन ग्रेन्स। सबसे पहले ऊपर होते हैं पोलन ग्रेन्स। फिर है आपका यहाँ पे देखिए बेटा, बुक में देखिए अपने पेज नंबर इस पे 135 पे फिगर 8.8 पोलन ग्रेन, स्टिग्मा, मेल जर्म सेल्स, पोलन ट्यूब। अंदर जो पोलन ट्यूब है इस पे क्या है? इसमें पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं। पोलन ग्रेन जब इसमें से ट्रांसफ़र होते हुए नीचे आ जाते हैं, नीचे ओवरी और फीमेल पार्ट है, नीचे वाला पार्ट फीमेल का है, ऊपर वाला पार्ट इसी में मेल का है। जब वो एग के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो क्या किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उससे न्यू प्लांट बनता है। ठीक है, पढ़ो बेटा। Page number 134. Reproduction encompasses such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction. But this creates a major difficulty if each new generation is to be the combination of the DNA copies from two pre-existing individuals. Then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. This is likely to mess up the control of the cellular apparatus by the DNA. How many ways can we think of for solving this difficulty? We have seen earlier that as organisms become more complex, the specialization of tissue increases. One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineages of cells in specialized organisms in which only
only half the number of chromosome and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells. This is achieved by a process of cell division called meiosis. Thus, when these germ cells Meiosis है हाँ जी Thus, when these germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the number of chromosomes and the DNA content in the new generation. वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, सेम वही चीजें इसमें पढ़िए. If the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissue and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this. In very simple organisms, it is seen that the two germ cells are not very different from one another or may even be similar. But as the body design becomes more complex, the germ cells also specialize. One germ cell is large and contains the food stores while the other is smaller and likely to be motile. Conventionally, the motile germ cell is called the male gamete and the germ cell containing the stored food is called the female gamete. We shall see in the next few sections how the need to create these two different types of gametes give rise to difference in the male and female reproductive organs and in some cases differences in the bodies of the male and female organisms. 8.3.2 Sexual reproduction in flowering plants. 3.2 फ्लावर में रिप्रोडक्शन बताया है. इसका सारे देखिए बेटा, इसके पार्ट्स हैं, ये हैं सबसे ऊपर जो होता है ये फ्लावर के, ये वो क्या क्या कहलाता है, स्टिग्मा. फिर वो जो लंबी सी लाइन इसमें देख रही हो वो स्टाइल. फिर नीचे जो है ओवरी. ये सिर्फ किसके पार्ट होंगे, ये 3 पार्ट जिसको मिलाकर क्या बोला गया है, पेस्टल. ये फीमेल के पार्ट होते हैं फ्लावर में. ठीक है, ये 3 पार्ट को मिलाकर एक नाम दिया है पिस्टल. किसको, पिस्टल. नेम द पार्ट्स ऑफ पिस्टल अगर तुमसे पूछेंगे तो बोलोगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ठीक है, ये फीमेल पार्ट है. और है मेल पार्ट. नेक्स्ट है आपके कौन से हैं, स्टेमन, एंथर और फिलामेंट. एंथर और फिलामेंट ये मेल पार्ट है जिसको आपने बोला है स्टेमन. ठीक है, इसके बाद इसमें पेटल, जो बाहर की पत्तियां होती है उनको पेटल बोला जाता है. फ्लावर की कलर्ड पत्तियां होती है और नीचे जो हरी हरी पत्तियां होती है ना, जिसके में फ्लावर बंद होता है फिर खुलता है तो वो पत्तियां नीचे लटक जाती हैं, उसको बोला जाता है सेपल. ठीक है, ये पार्ट है वे पूरे फ्लावर की. पढ़िए बेटा. The reproductive parts of angiosperms are located in the flower. You have already studied the different parts of a flower: sepals, petals, stamens and pistil. Stamens and pistil are the reproductive parts of a flower which contain the germ cells. What possible functions could the petals and sepals serve? The flower may be a unisexual papaya, watermelon. When it contains either stamens or pistil, or bisexual mustard, when it contains both stamens and pistil. Stamen is the male reproductive part and it produces pollen grains that are yellowish in color. You must have seen this yellowish powder that often sticks to our hands if we touch the stamen of a flower. Pistil is present in the center of a flower and is the female reproductive part. It is made of 3 parts. The swollen bottom part is the ovary. Middle elongated part. जो swollen part होता है उसको क्या बोला जाता है, ओवरी बोला जाता है. मिडल में जो होता है उसको स्टाइल, और फिर आगे एंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टिग्मा. ये पार्ट आपके क्या, किसके पार्ट्स होते हैं फ्लावर में, फीमेल पार्ट्स हैं ये. ठीक है, जिसको अगर एक नाम देंगे तो तीनों पार्ट्स का, तो वो क्या कहलाता है, पेस्टल. ओके बेटा, इस पैराग्राफ को पूरा करिए. The ovary contains ovals and each oval has an egg cell. The male germ cell produced by pollen grains fuses with the female gamete present in the oval. This fusion of the germ cells of fertilization gives us the zygote which is capable of growing into a new plant. ओके बेटा, इसके आप सभी इतना रीडिंग कीजिएगा, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स.